Hello dear friends, how are you? Since last a few days we are discussing how do organism reproduce, and in the first period we have discussed various issues of reproduction. Reproduction is one of the most essential process that maintains the number of species on this earth. It maintains the continuity of the species on this earth that we call perennation, and as I told you that it also helps in the process of speciation and evolution. Then then we came to know that like other life processes that which are maintaining the life, reproduction on the contrary uses energy, but reproduction is essential as it produces new offsprings. So parents die but offsprings, they remain, they once again grow, they mature reproductively, develop the ability to produce new ones, and therefore the life goes on. So individual may die but life goes on because of the reproduction. The reproduction is mainly of two types, as I told you earlier, asexual and sexual. Okay, the asexual, in the asexual mode, only one parent is involved. There is no formation of gametes and there is no fertilization, and therefore newly produced individuals, they are directly produced from the somatic or body cell of the parent and by mitosis, and therefore they are genetically exactly similar when they are produced from asexual reproduction. Okay, however, asexual reproduction is said to be the primitive or less important process. It occurs in it does not take place in vertebrates at all, and in higher invertebrates it occurs in lower organisms like Monera, Protista, sponges, Coelenterata, and some of the plants. However, the sexual reproduction is the most important as it involves the two parents. It involves the meiosis during the formation of gametes, and therefore the gametes are haploid. Then the haploid gametes from the two different parents fuse in the process of fertilization, and therefore as during the gamete formation, we will discuss it later, as well as during the fusion of the two dissimilar gametes from the two different parents which are coming from the two different ancestral line, there is recombination of characters occur in the organism that are produced through sexual reproduction. Though sexual reproduction is slow process, but this process gives a kind of vigor, a kind of resistance, a kind of vitality to the newly produced organism, and because that variation develop in that organism through sexual reproduction also help the organism to get adapted with the ever changing environment, and therefore this is considered as the most important process. Okay, it occurs in higher plants, it occurs in all animals, higher animals particularly. Okay, uh, now today we are going to discuss one of the most important aspect. Actually these are the things, as you know, that given in our NCRT book, and I'm discussing like that. I want to discuss it, the philosophy and the theory of the reproduction. Friends, you know that what happens in the reproduction. Suppose you consider a single celled organism, for example, and consider that that organism is having a nucleus, and it is having a, I will use different color for showing the DNA. Okay, for example, there is a one chromosome, and that one chromosome is nothing but one DNA molecule. Okay, this is one DNA, double stranded DNA molecule. So what happens when this cell said to be divide? Actually, when the cell divide or cell multiplies or cell reproduce, particularly in unicellular organism, what happens? You have to understand that DNA contain all the information of this single cell organism and the metabolism happening within that organism. Similarly, in multicellular organism, all the cell contain this genetic material in the form of chromosomes. Chromosomes are made up of DNA, and that DNA contains all the genetic information, all the information. Okay, the features of the parents. Okay, then the metabolic processes that are happening within the cell and the body, they are also being controlled by this DNA, and therefore the reproduction is the process of, number one, doubling of this genetic material that we called as DNA, and doubling of this cytoplasmic content, right, and then distribution of this material. इमेजिन करो ना कि ए सेल अगर डिवाइड होगा तो ये डीएनए तो आधा हो जाएगा, साइटोप्लाज्म ये आधा हो जाएगा,
पर वो आधा नहीं होता, वो सेम रहता है। जब सेल डिवाइड होके 2 सेल बनाता है तो इक्वल होता है। फिर ऑब्वियसली क्या होता होगा, पहले ये होता है जब रिप्रोडक्शन होता है तो जो डीएनए है, ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, पहले वो ऐसे सेपरेट होता है। ओके, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अभी जो सेपरेटेड स्ट्रैंड्स है ना, ये 2 इमेजिन करो, उसके ऊपर एक नया स्ट्रैंड कंस्ट्रक्ट होता है। ये ओल्ड स्ट्रैंड के ऊपर एक नया स्ट्रैंड कंस्ट्रक्ट होता है, एक ये डायरेक्शन से और ये डायरेक्शन से। तो क्या होगा आगे जाके, व्हाट हैपन्स देन, दिस न्यू स्ट्रैंड and this new strand, imagine, oh, and the older strand here, it will get coiled around it, and what you observe, that from one old DNA 2 daughter DNA molecules are formed. So this is we called as DNA copying. Actually it is a DNA replication. From a single DNA molecule 2 daughter DNA molecules are formed, which are exactly similar with each other as well as to that of parental DNA. Okay, so finally what you see, you will see that from parent DNA 2 DNAs are produced, and these two DNAs are then pushed into 2 different cells, this daughter cell and this daughter cell, along with the cytoplasmic content. So essentially reproduction means the doubling of DNA by the process of DNA copying, and DNA copying is the most important process because from the DNA molecule, newly formed DNA molecules are exactly similar, and therefore the parental information that is present on this DNA molecule is definitely distributed into the 2 DNA molecule, and these 2 DNA molecules are given in the 2 newly forming cells, and therefore 2 newly forming cells possess the characters of the parents, because this DNA contain the characters of this DNA, and this DNA is the parental DNA. So this is what we have to understand. What is the importance of DNA copying therefore? As the DNA contain information for the inheritance of the features from the parents to the next generation, the DNA that is present in the nucleus of the cell, they are the information of the source of making protein. Okay, if information is different protein will be made that lead to the already altered body design. इसके अंदर कोई बदलाव हुआ तो अलग से प्रोटीन बनेंगे और उसकी वजह से बॉडी अलग बनेंगे। पर डीएनए कॉपिंग का खासियत ये है कि दिस डीएनए मॉलिक्यूल व्हेन अंडरगो द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग, उसको कहते हैं रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए, it produce exactly similar DNA molecules. 2 daughter DNA molecules formed from this parent DNA. They are exactly similar, and therefore it inherit all the information and the features of the parental organism that enters into the next organism. Okay, so let me go further. Then as I explained you, this is more question asked in our NCERT book, that do organism create exact copies of themselves? I am saying organism. So answer is, usually organism produce through asexual reproduction, they produce exact copies of themselves. But organism produced through sexual reproduction never produce exact copies of themselves, because in sexual reproduction what is happening, gametes are being formed and these gametes are being fused. But during gamete formation in male and female bodies, some meiotic phenomena are responsible for crossing over between the chromosomes of mother and father, and as a result of recombination takes place during gamete formation, and therefore essentially the newly produced individual through sexual reproduction, they never are similar to each other and to that of their parent. Exact, आपको द मोनोजाइगोटिक ट्विंस, एक ही जाइगोट से बनने वाले जो 2 ट्विंस होते हैं वो ही जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म होते हैं दुनिया में। अदरवाइज हमारे माता पिता के हम सारे बच्चे बिल्कुल ही माता पिता के जैसे नहीं होते, मतलब बहुत से कैरेक्टर के बारे में। ऑफकोर्स वी आर ह्यूमन बींग, तो हम ह्यूमन बींग ही रहेंगे हम हमारे बहनों के भाइयों के जैसे नहीं रहते। ये हमारा आंसर है। पहले तो हम देखते ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइंस आर सिमिलर,
If body designs are to be similar, the blueprints for these offspring should be similar. In all organism, blueprint is essentially DNA, except a few viruses. जैसे कि अभी हम लोग कोरोना की बात कर रहे हैं, तो कोरोना जिसको हम कहते हैं रेट्रोवायरस, देर आर अ फ्यू वायरसेस वेयर RNA एक्ट्स एज ए जेनेटिक मटेरियल. वो वायरसेस अगर छोड़ दिए तो दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ब्लूप्रिंट है, जो जेनेटिक मटेरियल है जिसके ऊपर उस ऑर्गेनिज्म के सारे फीचर्स के कैरेक्टर एनकोडेड है, उसको हम ब्लूप्रिंट कर रहे हैं. जैसे हमारे घर की एक ब्लूप्रिंट होते हैं, घर बनाने के लिए पहले हम एक नकाशा बनाते हैं, दैट्स वी कॉल्ड ब्लूप्रिंट. तो कौन सी जगह क्या है हमको मालूम रहता है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कहाँ गया, पाइप कहाँ से कहाँ गया, है ना, एवरीथिंग वी नो थ्रू दैट ब्लूप्रिंट. सिमिलरली ये जो ब्लूप्रिंट है हमारा डीएनए, जो हमें हमारे माता पिता से मिलता है, उस डीएनए पे जिससे क्रोमोसोम बनते हैं बाद में, उस डीएनए पे एक्चुअली वो सारे जेनेटिकल कोड एनकोडेड है. और वही हमारा ऑर्गेनिज्म हमारे कैरेक्टर्स को वही हमारा डीएनए हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है. अब अगर हमारे पेरेंट के जेनेटिकल कैरेक्टर हम पे आने हैं, तो वो पहले क्या होना पड़ेगा, दैट डीएनए मस्ट हैव टू डुप्लीकेट, इट गेट डबल्ड, and that process of doubling occurs through the process of replication, as I told you earlier. And replication is a foolproof process that very rarely during DNA copying some error occurs, and therefore from parent to the next generation to the offspring there may occur certain changes, some variation. But most of the time this DNA doubling or DNA replication or DNA copying is most interesting and foolproof process. The reproduction and therefore at its most basic level will involve making copies of this blueprint. तो रिप्रोडक्शन का मकसद क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक सेल से 2 सेल बनाना है, तो एक सेल के अंदर 2 चीज़ें क्या है, एक तो न्यूक्लियस, उसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल, उसके बाहर का साइटोप्लाज्म. अब अगर जेनेटिक मटेरियल जो है उसके भी 2 कॉपीज बनाना है, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल क्या है, वो डीएनए. तो अगर रिप्रोडक्शन होता है इसेंशियली क्या होना है, पहले तो ये डीएनए के 2 डीएनए बनने, चलो 2 डीएनए बना दिए, ये 2 डीएनए बना दिए, और ये 2 डीएनए के बाजू में न्यूक्लियस बन गया, यहाँ न्यूक्लियस बन गया, एंड उसके बाजू में साइटोप्लाज्म भी, और साइटोप्लाज्म के सारे कंटेंट भी डबल हो गए. तो डबलिंग ऑफ डीएनए एज वेल एज डबलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस. दिस इज द व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो रिप्रोडक्शन essentially involve making of the copies of the blueprint of the body design, that means DNA. We learned that the chromosomes in the nucleus of cell contain information for inheritance of the feature from parent to the next generation in the form of DNA, deoxyribonucleic acid molecule. The DNA in the cell nucleus is the information source for making proteins. See, अब ये जो DNA है ना, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन, मैं आपको ये हर एक शब्द का मीनिंग बताऊंगा. ये जो बता रहा है ना कि हाउ DNA इज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग द प्रोटीन. अब हम इमेजिन करेंगे कि हमारा जो स्किन कलर है, इट इज़ ड्यू टू मेलानिन. मेलानिन नाम का एक ब्राउन कलर का पिगमेंट हमारे स्किन में होता है. पर ये मेलानिन बनता कैसे है, तो ये बनता टायरोसिन नाम के एक अमाइनो एसिड से. टायरोसिन इज कन्वर्टेड इनटू मेलानिन. पर ये टायरोसिन का रूपांतर मेलानिन होने के लिए वहाँ पर हमको एक एंजाइम लगता. उस एंजाइम का नाम क्या है, उस एंजाइम का नाम है टायरोसिनेज. ओके, मैं उसको नाम दूंगा ए, दैट टायरोसिनेज माने ए. अब ये टायरोसिनेज क्या है, एंजाइम है, पर एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है, मतलब वो अमाइनो एसिड से बना होता है. और ये जो अमाइनो एसिड एक दूसरे से जो लिंक से बनेंगे, चेन से बनेंगे, उस पर से ये जो एंजाइम है इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिपेंड रहती है. और ये जो लिंकिंग ऑफ अमाइनो एसिड है ये कौन डिसाइड करता, दैट इज बीइंग डिसाइडेड बाय डीएनए मॉलिक्यूल. Try to understand, I know that little intricate process, but in one sentence if I say that whatever may be the enzyme that are produced in our body that brings about certain metabolic reaction and the expression of character. अब जितना ज़्यादा टायरोसिनेज बनेगा उतना ज़्यादा मेलानिन बनेगा और उतने हम काले होंगे. और ये जो जीन है वो बनाता ये एंजाइम. कुछ लोगों में वो जीन होते नहीं है और फिर वो ये एंजाइम बनाता नहीं टायरोसिनेज, और उसके वजह से उन लोगों में टायरोसिन का रूपांतर मेलानिन में होता ही नहीं, इसलिए उनके स्किन में मेलानिन बनता ही नहीं. तो वो लोग सफ़ेद दिखते हैं हमको, वाइट, इनके कॉल्ड अल्बिनो, दे आर कॉल्ड अल्बिनो. आपने कौवा देखा होगा अल्बिनो, आपने टाइगर देखा होगा वाइट,
आपने सांप देखा होगा वाइट, इंसान भी देखा होगा आपको ऐसे सफ़ेद पूरा गोरा, उसको गोरा नहीं बोलेंगे हम, सफ़ेद बोलेंगे, बिकॉज इट लैक्स मेलानिन। उसके आई लैश में मेलानिन नहीं है, उसके आईब्रो में मेलानिन नहीं, उसके बाल काले नहीं, ये उसके स्किन में मेलानिन बनता नहीं, बिकॉज इट लैक्स दैट जीन, और वो जीन बनाता नहीं टायरोसिनेज, और वो एंजाइम टायरोसिन का रूपांतर मेलानिन में नहीं करता। तो मेलानिन उसके बॉडी में बनता ही नहीं, बिकॉज उसके उसके जेनेटिकल मटेरियल में, उसके क्रोमोसोम के ऊपर जो डीएनए है, उस डीएनए के ऊपर का जो जीन है वो मेलानिन बनाने वाला वो फॉल्टी है। दैट्स व्हाट यू टू अंडरस्टैंड इट। ओके, तो ये डीएनए प्रोटीन बनाने को बनाता, एंड दैट प्रोटीन actually responsible for certain changes in your body. If the information is changed, different proteins will be made, different proteins will eventually lead to altered body design. Okay, अब बदलाव अगर जो होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये इंफॉर्मेशन में कुछ बदलाव हुआ तो वो प्रोटीन मतलब एंजाइम बनते नहीं और हमारे बॉडी में वो एक्टिविटी एक्सप्रेस होती नहीं। देयरफॉर ए बेसिक इवेंट इन द रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। एक डीएनए से दो डीएनए बनना, ये इंपॉर्टेंट बात होती है रिप्रोडक्शन में, ये बात हमको समझनी है। ओके, सो डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज में हम आगे जाएंगे। सेल यूज केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए। These create two copies of DNA in the reproducing cell and they will need to be separated from each other. जो मैंने आपको पहले बताया वो सब sentences आ रहे हैं। However, keeping one copy of DNA in the original cell and simply pushing the other one out would not work, because the copy pushed out would not have any organized cellular structure for maintaining the life processes, and therefore DNA copying is also accomplished by creation of an additional cellular apparatus, and then the DNA copies separate each with its own cellular apparatus. Effectively, a cell divide to give rise to two cells. मतलब ये है कि डीएनए कॉपिंग ही केवल नहीं चलेगा, तो अलॉन्ग विद द डीएनए कॉपिंग, ये डीएनए से दो डीएनए बन गए, ठीक है, ये दो डीएनए बन गए, पर डीएनए को रिप्लिकेशन और डीएनए को एक्सप्रेस होने के लिए लगने वाला जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म मशीनरी है, मतलब साइटोप्लाज्म है, बाकी सारे सेल ऑर्गेनल है, वो भी डुप्लीकेट होकर डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा। दैट्स व्हाट इट इज मेंशन इन अवर डिस्कशन। ओके, दीज टू सेल्स आर ऑफ कोर्स सिमिलर बट दे आर लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। अब ये दोनों जो सेल बने वो सिमिलर है, पर वो आइडेंटिकल है क्या, बताओ। द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग इन्वॉल्व ऑकर। मतलब दो ऑर्गेनिज्म जो बने हैं वो काय पे डिपेंड है। ये जो डीएनए है, एक डीएनए से जो दो डीएनए बने, मैंने आपको बताया कि कैसा होता है, ये दो ऐसे स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं और हर एक ओल्ड स्ट्रैंड पे एक नया स्ट्रैंड बनेगा, इधर बनेगा एक इधर बनेगा, और ये दो स्ट्रैंड एक दूसरे के ऊपर लपेटे जाएंगे। ओके, दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। अब एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो डीएनए मॉलिक्यूल बन गए, और ये दो डीएनए मॉलिक्यूल अब दो ऑर्गेनिज्म में, दो सेल में चले गए, पर ये सवाल पूछा गया कि ये आइडेंटिकल होते क्या न्यूली फॉर्म ऑर्गेनिज्म। इट इज डिपेंड अपॉन ये जो डीएनए के बनने की जो प्रोसेस है कॉपिंग की, इसको मैंने कहा रिप्लिकेशन, ये कितनी एरर फ्री होती है उसके ऊपर डिपेंड है। अगर वो एरर फ्री हुई तो डेफिनेटली नए बनने वाले ऑर्गेनिज्म सेम हो गए, लेकिन उसके अंदर कुछ चेंजेस या म्यूटेशन हुए तो ऑर्गेनिज्म में भी चेंजेस आएंगे। दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, देन as a result the DNA copies generated will be similar but may not be identical to the original. सिमिलर तो है पर कुछ बदलाव उसके अंदर होते हैं। some of these variations might be due to be so drastic that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus in inherit. such a newborn cell will simply die. कभी कभी नए बनने वाले डीएनए इतने ड्रास्टिकली बदल जाते हैं और ऐसे ऑर्गेनिज्म में जाने वाले वो ड्रास्टिकली बदले हुए डीएनए के ऑर्गेनिज्म जीते भी नहीं है, वो मर जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतने बदलाव होते हैं कि वो जी नहीं पाते। पर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर के डीएनए में ऐसे कुछ बदलाव हुए, पर जो बदलाव के वजह से ऑर्गेनिज्म की एडाप्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ओके, तो वो जिंदा रहते, वो सर्वाइव करते। एंड द सर्वाइविंग सेल्स आर सिमिलर बट सबली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। थोड़े से एक दूसरे से बिल्कुल छोटी छोटी बातों में अलग हो जाते हैं। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीएनए के कॉपिंग में थोड़ा सा जो इनबिल्ट टेंडेंसी है क्या, के वेरिएशन निर्माण करने की,
यही है इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन एज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर। हमको हेरिडिटी और इवोल्यूशन नाम का चैप्टर है, और ये साल कोविड की वजह से हमारा सिलेबस कम हुआ है, तो वो इवोल्यूशन वाला चैप्टर हमारा नहीं रहा, पर जेनेटिक्स रहा है, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला भी चैप्टर नहीं रहा। ये मैं आपको खुशी के लिए बता रहा हूँ। ओके, सो दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर डीएनए कॉपिंग के समय कुछ एरर आता है और वो एरर में कुछ उपयुक्तता होती है, यूजिबिलिटी होती है, अडाप्टिबिलिटी होती है, तो वो रहता है। अगर नहीं हुआ तो वो ऑर्गेनिज्म पेरिश ऑफ हो जाता है। ओके, ऑर्गेनिज्म विथ सबल मतलब छोटे से बदलाव के साथ में हर एक जनरेशन में, अगले अगले जनरेशन में वो अच्छे यूजफुल कैरेक्टर इनहेरिट होके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और एक ऑर्गेनिज्म विद अ कंप्लीट न्यू सेट ऑफ गुड कैरेक्टर्स विच बिकम नाउ अडेप्टेबल फॉर द एवर चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन बिकम द न्यू स्पीसीज, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज इवोल्यूशन। तो ये जो प्रोसेस है एक तरह से रिप्रोडक्शन की इवोल्यूशन को मदद करने वाली प्रोसेस है। अब और एक इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात हमको देखनी है इस चैप्टर में, वो है द सोर्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। मैंने आपको कहा है फ्रेंड्स कि ये हम लोग डिस्कस करेंगे एक छोटा सा पार्ट कि व्हाट आर वेरिएशंस। मैंने आपको कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस वेयर इसेंशियली द न्यूली प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म शोज dissimilarities to that of their parents. There are certain little changes that occurs in offsprings on their parents which are produced through sexual reproduction. So these are called variation. अब ये वेरिएशन के कारण क्या है? अभी तक हमने डिस्कस किया दैट देयर मे बी एरर इन डीएनए कॉपिंग। हमारा डीएनए बहुत बड़ा है। ह्यूमन बीइंग की बात हम करेंगे तो वी आर हैविंग 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम एंड वी दैट 23 chromosomes are made up of 23 DNA, different types of DNA, and total DNA is made up of about 3 billion नाइट्रोजन बेस पेयर, मतलब उसके जो यूनिट्स है 3 बिलियन यूनिट से बना है डीएनए हमारा। बहुत बहुत बड़ा डीएनए हमारा, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मेगा बायोमॉलिक्यूल। उस डीएनए की हम बात करेंगे तो उसके अंदर कहीं जगह 0.001% भी हम बात करेंगे तो भी काफ़ी बदलाव उसके अंदर हो जाते हैं। तो पहला तो सोर्स है वेरिएशन का, देयर में बी ए चांस ऑफ एरर ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग। डीएनए का रेप्लिकेशन होते समय, एक डीएनए से दो डीएनए बनते समय कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस, कुछ गड़बड़ियाँ, कुछ एरर हो सकते हैं। वो पहला कारण है वेरिएशन निर्माण होने का। हम इंपॉर्टेंस की भी बात करेंगे। ओके, दैट इज सिमिलैरिटीज ऑफ ऑफस्प्रिंग टू दैट ऑफ देयर पेरेंट्स आर कॉल्ड एज वेरिएशन। अभी मेजर सोर्सेज क्या है मैंने आपको पहले बताया, पहले वो हम फिर से याद करेंगे दैट देयर मे बी एरर during inaccurate copying of the DNA during the cell duplication. DNA also duplicated, that process called replication, by the process of replication. In this copying, if some error occurs, it will leads to variation. ये सबसे पहला पॉइंट है, keep in mind. The variation in DNA occurs due to error during inaccurate copying of the DNA that leads to the formation of variation in offspring. Number one. Second, another important is mutation. Yes, try to understand. What is mutation? It is a sudden heritable change इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए के जो ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है, जो क्रोमोसोम, उसके अंदर के कुछ बदलाव। पर वो कैसे होंगे? दैट वी कॉल्ड म्यूटेशन। वो हो गए म्यूटाजेनिक एजेंट से। म्यूटाजेनिक एजेंट्स आर अल्फा, बीटा, गामा रेज, एक्सरे, सर्टन केमिकल्स। ओके, एंड देयर आर सर्टन केमिकल्स लाइक nicotine of the tobacco. They induce certain changes in the DNA that we called as mutation. And once this mutation occur, okay, due to mutagenic agent like X-ray, alpha, beta, gamma rays, UV radiation, and some chemicals, they will inherit in the next generation, and they will also result into formation of certain changes. Okay, that we call mutation. After mutation, there is another source of variation, that is a crossing over. That what I was telling you, that crossing over the phenomena where during the gamete formation, you should try to understand. Suppose this is a maternal chromosome, okay, and this is a maternal means your body is having two types of chromosome, maternal as well as paternal. Okay, now what happens during the gamete formation? This maternal and paternal chromosome, they cross over each other. ये एक दूसरे के ऊपर उनके जो इसको कहते हैं क्रोमैटिड्स, वो देखो यहाँ पर क्रॉस हो गए, यहाँ पर क्रॉस हो गए। और जो क्रॉसिंग और ये जो पार्ट है,
ये लाल वाला पार्ट इधर जाएगा और हरा पार्ट इधर जाएगा, लाल वाला इसको लगेगा, हरा इधर लग जाएगा. क्रॉसिंग ओवर एंड ट्रांसफर ऑफ द सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम. तो मदर के फैमिली से आने वाले जीन्स का सीक्वेंस था, वो फादर के क्रोमोसोम को लग गया, फादर का मदर को लग गया, और फिर ये क्रोमोसोम अलग हो गए गमेट्स में. तो गमेट फॉर्मेशन होते समय ही क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा, गड़बड़िया हो रही, चेंजेस हो रहे, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है. ओके, सो दैट्स व्हाट आई हैव जस्ट मेंशन हियर. ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्स सेल दैट मीन गमेट्स प्रोड्यूस. ड्यूरिंग गमेट फॉर्मेशन मियोसिस टेक्स प्लेस, और ये मियोसिस के समय, ड्यूरिंग मियोसिस क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन पैरेंटल, मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स, okay, which results in recombination of character. It is the basis of variation in organism that are produced through sexual reproduction. Particularly sexual reproduction से produce होने वाले organism के वेरिएशन का कारण क्रॉसिंग ओवर है, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनमें ये दो बातें हो सकती है, म्यूटेशन और एरर्स इन डीएनए कॉपिंग. और एक कारण है वो हम देखेंगे और खत्म करेंगे, वो है रैंडम फ्यूजन ऑफ गमेट्स. अब देखो, मेल पेरेंट, इमेजिन करो हमारे फादर एक फैमिली से आए, हमारी मदर दूसरे फैमिली से आई है, उनके एक फैमिली की हिस्ट्री है, जेनेटिकल पेडिग्री कहते हैं हम हमारे भाषा में उसको. आप देखिए उनमें बहुत सारे वेरिएशन है. अब उन्होंने जब गमेट बनाए, मदर ने बनाया फीमेल गमेट, फादर ने बनाया मेल गमेट, तो फादर ने जितने मेल गमेट बनाए 3 बिलियन स्पर्म्स, वो सारे अलग अलग एक दूसरे से. हमारे मदर के बॉडी में बनने वाला ओहा वो अलग है, पर ऐसे दो अलग फैमिली से आए वाले, जेनेटिकली डिफरेंट फैमिली से आए वाले गमेट्स वो किसी भी तरह से मिल सकते. देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रैंडम फ्यूजन. 3 मिलियन स्पर्म में से कोई एक मिलियन, कोई एक स्पर्म मिलेगा, फ्यूजन होगा ओवम से. सो इट कुड बी एनी प्रोबेबिलिटी. दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज के random fusion of the gamete, that gametes are coming from the 2 different parents, coming from the 2 different genetical sources, and therefore definitely the offspring produced through these 2 parents coming from the 2 different genetically sources जो कि डिसिमिलर है एक दूसरे. हमारे मदर फादर एग्जैक्टली सिमिलर है क्या? नहीं है. मतलब मेल फीमेल छोड़ दो, पर बाकी कैरेक्टर के बारे में, हमारी मॉम इंटेलिजेंट है, हमारी मॉम के कर्ली हेयर्स है, शी कुड बी वेरी फेयर. इसके उल्टा कुछ हमारे फादर के कैरेक्टर हो सकते हैं. तो ये कैरेक्टर अलग अलग फैमिली से आए, और जब हम बनेंगे तो हो सकता है दोनों के कुछ कॉमन कैरेक्टर है, बिल्कुल एक नया रिकॉम्बिनेशन बना हो, या कुछ मदर के कैरेक्टर कुछ फादर के, तो एक तरह का रिकॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि फ्यूजन गमेट का फ्यूजन रैंडम होता है. तो ये है सोर्सेस ऑफ वेरिएशन. ओके, अब इसका इंपॉर्टेंस और बाकी चीज़ें हम अगले पीरियड में देखेंगे. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पूछते एग्जाम में, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ वेरिएशन. तो म्यूटेशन, sudden heritable changes in the genetic makeup of organism due to some mutagenic agent. Then error during the DNA copying, during the sexual reproduction, DNA duplicates and it get copied and then distributed. During that copying there is a chance of error. Then crossing over during the meiosis, during the gamete formation, maternal and paternal chromosome, they cross upon each other, and from the point of crossing that called chiasma, the segment of the mother and father paternal chromosome they exchange. As a result, recombination occurs and the gametes may be fused randomly. But what are the variation, what are the importance of variation, and the remaining part, and probably a type of a sexual reproduction we will discuss in the next period. Till then, goodbye. Thank you very much. Good night.